My dear friends, this is the day of my surgery. I went to the hospital and they started operating on me. They put lots of injections in my eye and few drops to make it numb. But by that time, I started choking. I could not breathe. So they had to stop the surgery and bring me back to the room here to sit down. They bought me a cup of tea and they bought me a cheese sandwich and they wanted me to just sit there, relax while they work out what's going on. And then the surgeon came and he spoke to me and made other arrangements what to do next. So for me, friends, it was almost like near death experience. I could not breathe and my daughter was waiting there in the waiting room for me, and surgery was about 2 hours long surgery, but they had to stop it right in the beginning. They could not carry out. This was all God's wish, and He saved me from this kind of surgery, which is quite a long story. I don't know what all to tell you about it, but the only thing I want to say is thank God I did not go through it fully, and I'm back here with all of you. Otherwise, this was a very, very complicated surgery. That's why I was scared when before also the date came and we changed it, and now we thought, okay, we will go again for this one and we'll see what happens. But this was a very, very difficult period. I didn't know anything that this is how they are going to do it, and I could not breathe. So this was the most challenging. Now, again, tomorrow I am asked to go to the hospital, another bigger hospital, and have my pre assessment for general anesthesia, where they will totally knock me out and then they will try and do the surgery. So tomorrow I'm going again to the big hospital where they're going to find out whether I should go ahead with this surgery or not, because I'm losing sight in my left eye and they are trying to save my eye. So here yesterday I came in the park with my daughter because all these days I was home, and I was very painful. It still is painful because by the time I came out, they had already given so many injections and so many drops in my eyes. And so those injections caused like wounds in the eye. So I have antibiotics to put in my eyes and other eye drops also. It's very, very painful, I tell you, very painful. But hopefully, I should be better soon. I have taken the bandage out of my eye now and I am much better. So I came to the park thinking, let me at least have a nice relaxing day in the park and also shoot a video and tell you guys what happened to me. So I hope all my friends can understand. Those who do not understand, I don't know if there is an option to translate it into Hindi, or I will try and tell them in Hindi little bit in the other little part of this video. Meanwhile, you guys can enjoy looking at the park. This is our local park. It's a very beautiful park where they have lakes and they have swans and ducks, and people from all around the city, they come here and they spend a very relaxing day. हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग ऑन मी। आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि मैं कब वापस आऊं और आके आप लोगों को अपने बारे में बताऊं। कितने 3-4 दिन तो हो ही गए हैं, मुझे तो टाइम का भी नहीं पता चला कि कितने दिन गुजर गए हैं और वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, क्योंकि
बस कुछ ऐसे दौर से गुज़री हूँ कि ये सोचें कि मुझे ऊपर वाले ने बचा लिया है। और ये अभी मैं पार्क में आई हूँ बाहर अपने घर के पास, अपनी बेटी के साथ, कि इतने दिनों से घर में बैठी हुई हूँ, तो चलो थोड़ी-सी रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को हाल-चाल बता दूँ कि क्या हाल है। तो क्या हुआ था, मैं अपनी आँख की सर्जरी के लिए गई थी, जो कि एक बहुत मेजर सर्जरी थी। तकरीबन 2.5 घंटे की सर्जरी होनी थी। तो उसमें वो बेहोश करके नहीं करते, आँख में इंजेक्शंस वग़ैरह लगा के और ड्रॉप्स डाल के, जिससे आँख बिल्कुल ऐसे नम हो जाती है कि फ़ील नहीं होता है। तो वो तो पहले भी मेरी 2-3 बार सर्जरी हो चुकी हैं, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इस बार उन्होंने जैसे ही मेरे को वहाँ ऑपरेटिंग टेबल पे लिटाया और मेरे को आई में ड्रॉप्स देने शुरू किए और एक इंजेक्शन लगाया, तो एकदम से ही मैं सांस नहीं ले सकी और जैसे कि बिल्कुल सांस मेरी बंद हो रही थी। तो जल्दी से उन्होंने एकदम मेरे को पकड़ के बिठाया और उसके बाद मेरे को बहुत सारा वॉमिट वगैरह हुआ और डॉक्टर ने फिर बोला कि नहीं, हम आपकी सर्जरी नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे विदाउट फुली बेहोश किए आपके लिए ये सर्जरी करवाना मुश्किल है। तो उसके लिए अब मुझे कल दूसरे हॉस्पिटल जाना है। लेकिन क्योंकि वो लोग पहले से ही इतने इंजेक्शन आँख में लगा चुके थे कि उसके लिए मुझे अब और आँखों में एंटीबायोटिक ड्रॉप्स वगैरह डालने, और ज़ख्म के ऊपर जब दवाई लगती है तो इतना दर्द होता है, इतना ज़्यादा कि पता नहीं कोई मिर्ची डाल रहा है आँख में। तो बहुत पेनफुल प्रोसेस था और मैं कभी भी किसी भी चीज़ से डरती नहीं हूँ, लेकिन इस बार मेरा दिल नहीं मान रहा था। जब भी ये बात होती थी, पहले भी एक बार प्लान किया था, तो फिर उन्होंने डेट चेंज कर दी, तो इस बार फिर से ये हुआ, तो मुझे यही हो रहा था, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो देखें, अंदर से आवाज़ दिल से आ ही जाती है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो अब मुझे कल जाना है, जहाँ मेरे को जो लोग एनेस्थीसिया देते हैं, आपको बेहोश करते हैं, वो पूरा मेरा ईसीजी और ब्लड टेस्ट और सब कुछ करके देखेंगे कि मेरे को जब वो बेहोश करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। लेकिन अभी भी डबल माइंडेड हूँ कि ये ऑपरेशन करवाऊँ कि ना करवाऊँ। लेफ़्ट आई में मेरे थोड़ी विज़न कम है, बहुत कम है। ये कंडीशन है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में क्या होता है, उसको काला मोतिया बोलते हैं अपने इंडिया में। तो उसमें टाइम से थोड़ी थोड़ी आपकी नज़र चली जाती है और आखिर में आप ब्लाइंड भी हो सकते हैं। तो ये एक तो जिसके घर में होती है बीमारी ना, जैसे मेरी अम्मी को थी, मेरी माँ को थी, तो मेरी माँ के बाद अब मुझे है, मेरे मामा जी थे उनको भी थी, मेरी मौसी थी उनको भी थी। तो कई बार कई जैसे शुगर की बीमारी होती है, ब्लड प्रेशर की होती है, वो भी ख़ानदान में चलती हैं। तो कुछ तकलीफ़ें ये ऐसी होती हैं जो चलती हैं घर में। तो ये मेरे साथ हो रहा है। लेकिन अब कल मेरी कज़न से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि उनके फादर इन लॉ को भी यही था, लेकिन उन्होंने सर्जरी का मना कर दिया था क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। और हर थोड़ी देर बाद उनको मेरी आँख के अंदर जो एक ट्यूब इन्होंने अंदर फिट करनी है, जिससे कि आई का प्रेशर, उसमें पानी जो इकट्ठा होता है उसको निकाल सकें। तो उनको फिर से मुझे इंजेक्शंस लगा के मेरी आँख को सुन करके और फिर वो प्रोसीजर करना पड़ेगा। मतलब बार बार एक टाइप का ऑपरेशन ही है, करना पड़ेगा हर कुछ महीने बाद। तो इतना सब सहना बहुत मुश्किल है। तो एक आँख की नज़र ठीक है, ये लेफ़्ट आई की मेरी नज़र काफ़ी कमज़ोर हो रही है। तो अब उम्र देखें, 71 की हो गई हूँ, कितनी देर और जी लेंगे, है ना, कुछ साल और
जब तक भगवान ने, ऊपर वाले ने एक आँख दी हुई है, उतने से ही काम चला लूँगी। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं कल जब हॉस्पिटल जाऊँगी, वहाँ उनसे सारी बात करके जो भी है, अगर तो कोई और तरीका बताते हैं तो मैं करवाऊँगी ऑपरेशन, वरना मैं नहीं करवाऊँगी। और जस्ट वहाँ चेकअप करवा के और जो भी है ईसीजी वगैरह सब कुछ हो जाएगा, तो उन चीज़ों की तसल्ली हो जाएगी। बाकी अब मेरी हेल्थ जो है बिल्कुल ठीक है। मेरा ब्लड प्रेशर और मेरी दवाइयाँ इतनी भगवान ने कम करवा दी हैं कि जितनी मैं पहले दवाइयाँ लेती थी उससे आधी दवाइयाँ हैं, टच वुड। अब उतना मैं कोई प्रॉब्लम में नहीं हूँ, सब कुछ ठीक ठाक है। तो बस ये आँख का मसला है। अब ये आँख का अगर ख़ानदानी मसला है, इसमें क्या कर सकते हैं ना। जो है हमारे बुज़ुर्गों ने सहा, तो मुझे भी ख़ानदानी तोहफ़ा मिला है, तो मैं भी इसको संभाल के रखूँगी। इतना शुक्र है कि आगे मेरे बच्चों को नहीं है किसी को कुछ। तो दोस्तों, आपकी दुआओं ने बचा लिया, वरना उस दिन बिल्कुल सांस रुक रही थी। और ये मेरे पार्क का नज़ारा इतना प्यारा है। यहाँ आओ तो ऊपर से प्लेन जा रहे हैं, नीचे लेक बनी हुई है और डक्स हैं और स्वॉन्स हैं बड़ी वाली, और इतना प्यारा मौसम था। बादल खूब छाए हुए थे लेकिन ठंड नहीं थी। तो मैं तो बिल्कुल जैकेट वगैरह, स्वेटर कुछ भी नहीं पहन के आई थी। और यहाँ पे एक फैमिली थे, वो बैठे हुए पतंग उड़ा रहे थे, तो वो भी देख के इतना अच्छा लगा। ये देखें, छोटी सी आपको नज़र आई, पतंग उड़ रही है वहाँ पे। तो पुराना गाना एक है, कुछ ऐसे पतंग वाला एक बहुत पुराना गाना है, वो भी याद आ रहा था। और यहाँ पे ये जो कुछ पिक्चर्स हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। शायद मेरे ख्याल से मैंने वापस आके यहाँ पे बनाई हैं, तो वो पिक्चर्स भी बहुत प्यारी वहाँ पे लगी हुई हैं। ये लेक को कुछ इन्होंने साफ़ करना है अभी, क्योंकि जब समर थी तो बहुत पत्ते वगैरह और चीज़ें ऐसे पानी में आ जाती हैं, तो इन्होंने यहाँ से डक्स को दूसरी लेक में ट्रांसफ़र कर दिया हुआ है। और लोग यहाँ पे अपने डॉग्स वगैरह लेके आते हैं वॉक करने के लिए, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि डॉग को खुला छोड़ दें, या डॉग कहीं भी हो तो वहाँ पॉटी करे या कुछ है। अगर पॉटी करे तो उनको उठानी पड़ती है वहाँ से। इतना स्ट्रिक्ट होता है और इसलिए इतना क्लीन रखते हैं इस जगह को। देखें, आपको कहीं पे कोई भी गंद नहीं नज़र आएगा। और ये बहुत बड़ा पार्क है। और ये जो यहाँ पे बड़ी सी जगह, यहाँ इन्होंने काफ़ी काउज़ और हॉर्सेस और वो सब रखे हुए हैं। और फिर इनको लाइक इनका मिल्क ये बाज़ार में बेचते भी हैं, क्योंकि प्योर मिल्क है, बिल्कुल ऑर्गेनिक मिल्क है। गाय को घास वगैरह में खिला के पाला गया है, ये नहीं कि कोई बाज़ार का चारा दे के। तो अच्छा दिन गुज़रा मेरा और मेरी बेटी का, लेकिन अभी तक मेरी आँख हील हो रही है। अभी भी उसमें दर्द है, दिन में 4 टाइम ड्रॉप्स डालने हैं, तो काफ़ी मसला हो रहा है। आई होप जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन देखते हैं आगे कल क्या होता है और उसके हिसाब से आपको बताऊंगी। तो मैंने सोचा चलें एटलीस्ट आपको इन्फॉर्म करना है, तो एक व्लॉग बना के आप सबको मैं बता दूं कि क्या है सारा यहाँ पे। और ये बड़े बड़े से जैसे और कुछ डिफरेंट टाइप के जानवर इन्होंने ये भी रखे होते हैं। बकरी तो नहीं होती हैं यहाँ पे, गोट्स नहीं होती हैं। तो बर्ड्स वगैरह भी बहुत इनके पार्क में, अच्छे अच्छे से बर्ड्स, बहुत नाइस वाले। और ये मैं थोड़ा सा पास में करके दिखा रही हूँ कि कैसे काउज़, उनके बच्चे, और हॉर्सेस भी ऐसे ही, कोई वाइट होते हैं, कोई ब्राउन कलर के, बहुत प्यारे प्यारे होते हैं। तो अच्छा दिन गुज़रा। होप आप भी ठीक होंगे सब। टेक केयर।